Okay, guys, so we'll start the class. So, guys, so our topic, today's topic is objective of the business. What is our topic? Objectives of business. So today we will discuss on that. So this is our first objective, marketing standing. It refers to the position of the enterprises in the relationship to its competitor by providing the quality product and better services to its customer. It means that बेटा जब देखो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, टू अर्न द प्रॉफिट मोटिव, हमें प्रॉफिट कमाना, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये भी हैं कि हम अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी से अच्छी सर्विसेज हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करें. सो हर एक बिजनेस के बेटा अपने अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स or that objectives refer to all that the business people want to get in the return from what they do, and generally believe that the business activity is carried out only for the profit. The business person themselves proclaim that their primary objective is produce and distributing the goods and services for the profit. और उसका जो बेसिक मोटिव होता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे और उसके अगेंस्ट में वो प्रॉफिट earn करें. Every business is said to be an attempt on the part of the business people to get more than what they have been spent or invested. और हर एक बिजनेस का मोटिव ये होता है कि उसने जितना भी इन्वेस्ट किया है बेटा उससे, और जितना भी उसने मेहनत करी है उससे ज्यादा उसको मिले. सो मार्केटिंग स्टैंडिंग्स क्या होती हैं बेटा कि it's referred to the position of the enterprises in the relationship to its competitor by providing the quality products and better services to the customer. So वो अपने customers को और अपने competitor से better quality provide करे बेटा. Next one is innovation. What is innovation? Innovation means the introduction of something new to the market. It's maybe new design, new quality for existing the product and new method of the production. इनोवेशन मीन्स हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को, अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको अपडेट करते रहें, कुछ नया मार्केट में उतारें. कि लोग पुरानी चीजें देख देख के बोर हो जाते हैं तो उन्हें कुछ नया चाहिए होता है, नया मार्केट. So something new in the market, it may be new design हो, new quality हो, या पैकिंग नई हो, या नए मेथड से प्रोड्यूस किया गया. तो इनोवेशंस होते रहना चाहिए बिजनेस में. जितने ज्यादा इनोवेशंस होंगे उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट जो है डिमांड में रहेगा. सो हु विल टेल मी द इनोवेशन बेटा? सो Karman, can you tell me the innovation? So yes, innovation is the introduction of something new in market that can be a new product, new brand, or
a new system of its production. Thank you, beta. That's right answer. Simranjit, Simran, Ritik Verma. Guys, first of all, turn on your webcams. जिसका भी webcam off होगा मैं उसको निकाल के बाहर करूंगा मीटिंग में से. Mandeep beta, can you explain me what is innovations? You can unmute yourself. Okay, Vaishali, can you? So innovations means to introduce something something new in the market, or innovation is also related to upgradation in their techniques in the product or new designs. Very good. New packings also. The productivity. Next topic is the productivity. Every business should aim at the greater efficiency and productivity by the best use of available resources. हर एक बिजनेसमैन का कोशिश रहती है और उसके लिए वो ट्राई करता है कि उसके पास कम से कम पैसे खर्च करके और मिनिमम रिसोर्सेज को या उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उससे बेस्ट से बेस्ट जो है बेटा प्रोडक्ट और आउटपुट आ सके और बेस्ट एक्टिविटी कर सके. एवरी एंटरप्राइज शुड एम अ ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज. वो अपनी यस हु इज दैट? Who has raised the hand, beta? Yes, Kamaljeet, beta. Sir, you are not sharing any type of PPT with us. Okay, today Sir, we also want to make notes. Pardon? Sir, we also want to make notes of it. Yeah, so I'll today I will upload it. Okay, beta? Don't worry about that. I'll upload the chapter. Anyone else, beta? Yes, Sunana, what is productivity, beta? Sir, productivity means like we are having limited resource to utilize that resource in such a manner so that we can get a great output, and we may benefit our company with that. We may get a profit with that. Okay, so it means it simply it means that कि हम जो हमारे पास resources हैं उनसे हम maximum productivity निकाल सकें, maximum output ले सकें. It's as simple as like that. Another one, physical and the financial resources. ये सबसे मुश्किल थोड़ा सा काम हो जाता है क्योंकि हर एक बिजनेस को जो है रिसोर्सेज चाहिए. सब सारे बिजनेसेस को हमारे मनी चाहिए. सो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे. एक्वायरिंग द फिजिकल रिसोर्सेज लाइक building, plant, machine, office, etc., and the financial resources fund for operation of the ensure its efficient use. So हमारे पास जितने भी बेटा फिजिकल रिसोर्सेज हैं जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, ऑफिस है, और जो हमारे पास फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं यानी जितने हमारे पास पैसे पड़े हुए फॉर द ऑपरेशन, उनको हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम उनको बहुत स्मार्टली यूज कर सकें, उन्हें हम बहुत स्मार्टली यूज कर सकें. चलो इसको I'll ask this one to someone. Okay, Ritik, can you tell me, beta?
Physical and financial resources. Who will tell me? Jasmine, can you tell me? Yes, sir. Just answer me, beta. Sir, every business enterprise requires both physical resources like machines, furniture, tools, etc., and financial is funds of for producing, purchasing, and supplying material for goods and services. Very good. Anyone else, beta? Sukhjab, can you tell me, beta? Sukhjab, beta, can you tell me? Can you explain this one? नाराज है मुझसे, बात ही नहीं कर रहा है. Earning profit. Who will tell me? This will goes to the earning profit. Kshitij. Okay. Kshitij, can you tell me the earning profit? Yes, go ahead. Kshitij. I'm audible now, beta? Vaishali, I'm audible, beta? Vaishali, I'm audible? Yes, sir. So why they are not replying me, guys? Earning profit. Okay, Vaishali, can you explain this one? Earning profit? Yes, sir. Yeah. So earning profit means that money, how much we have invested in our business to earn more than that Yeah. in back, so that we can expand our business. Very good. And anyone else? Okay. Karman, can you explain me? So yes, so earning profit means the profit that we earn from our business, and this is the main objective of the business, because if we can't earn the profit, then business is not possible. It can survive further. Very good. Very impressive. So as you know that profit is regarded as the... Sir, I also want to ask that. Yes, beta. So can you please repeat fourth part? Fourth part, sir, physical and financial resources. Sir, I didn't get that. Physical and the financial resources is like that. So all the buildings, plant, machine, whatever the physical existence they have, and as well as the funds, they have to use like very smartly to get the maximum output. Okay, clear? इन सारी चीजों को उन्हें बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए जिससे कि उन्हें मैक्सिमम आउटपुट मिले. ठीक है? That's clear to you, beta? Sir, okay. So earning profit, because every business primary motive is to earn the profit.
So every business focus on the profit, and profit is the lifeblood of a business for the survival. और जब तक आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो आपका बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा उस इंटरप्राइजेस का, और आपको भी काम करने में, बिजनेसमैन को भी काम करने में मजा नहीं आएगा कि यार प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, फालतू में हम लोग मेहनत इतनी कर रहे हैं। तो वो प्रॉफिट जो है मोटिवेशन भी देता है और दूसरे लोगों को इनकरेज भी करता है। जो प्रॉफिट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। मैनेजर्स परफॉर्मेंस इन द डेवलपमेंट, enterprises should take much initiative to improve the efficiency of its manager by conducting the various program to motivate them. और बेटा मैनेजर जो होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटरप्राइजेस में, क्योंकि वही इनिशिएटिव लेता है, इफिशिएंसी इंप्रूव करता है बेटा पूरे बिजनेस की। जितने भी वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करता है। कभी कभी वर्कर्स एक जैसा काम करते करते वो डल हो जाते हैं तो उनको वो मोटिवेट करता है। जितने भी वेरियस एक्टिविटीज है उनकी एफिशिएंसी चेक करता है। वो डिसाइड करता है कि बेटा कि कौन कौन से जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं उन पे हम ज़्यादा मेहनत करें। और वो अपने टीम के मोटिवेशंस के लिए बेटा बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करता है। तरह तरह से वो डिफरेंट वे से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है बेटा। कभी बोनस दे के, कभी उनसे बात करके, कभी उन्हें मॉनेटरी फ़ायदा पहुंचा के, कभी गिफ्ट दे के। सो ये मैनेजर की परफॉर्मेंस के ऊपर है कि बेटा कि बिजनेस को वो कितना डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। Every enterprise should be aim at improving its worker performance and their positive attitude. So the workers performance and the attitude, every enterprise should aim to improve its workers performance and their positive attitude. आपको पता है जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, वर्कर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, मैनेजर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो ही हम अपना बिजनेस अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी हो सकती है। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो हम लोग अच्छे से काम नहीं कर सकते, स्किलफुल काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी नाराज हो तो वो मन लगा के काम नहीं करता तो उसकी इफिशिएंसी पे वो कमी आती है, वो धीमे धीमे फिर काम करता है और फिर उससे गलतियां भी ज़्यादा होती हैं। गलतियों का मतलब बिजनेस में है डायरेक्टली मॉनेटरी लॉस। तो इसलिए परफॉर्मेंस, वर्कर की परफॉर्मेंस एटीट्यूड के लिए बेटा उसको मोटिवेटेड, पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव मोटिवेटेड करना ज़रूरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो मुझे कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा आज। Who will explain the social responsibility? So I'll go for the Sunaina. सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि जैसे कोई वर्कर बताता है कि कंपनी को कि किसी बिजनेस में कि सोसाइटी को कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए ताकि हमारा बिजनेस भी फायदे में रहे और सोसाइटी का भी फायदा हो। Yes. इट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Well done. Well done. Yes, Palak. Palak. Where is she, Palak? Yes, Palak, beta, can you? Yes, sir. Sir, it refers to the obligations like if a society has a complaint about anything related
to the product, so we can enhance it and improve it by various adding up the features, so that the society should not be in a complaint that they should buy more product. It will enhance the social welfare and help us to expand the business on the basis of that. Yes, amazing answer, beta. Very good. It's referred to the social obligation of the business firm contribute the resources to solving a social problem and to work in the social desirable manner. अब इसके एग्जांपल्स जैसे इन्होंने उसको बताया, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ थोड़ा सा और। अब देखो बेटा, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं कि जैसे हम लोग जो हैं ऐसा कोई बिजनेस नहीं करें जिससे कि लोगों पे गलत असर हो, या उस जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सिटी में जो है शहरों के बीच में हमने एक फैक्ट्री लगा ली और उससे बहुत सारा धुआं हो रहा है और उससे बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो रही है, तो एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई हम जो अपनी फैक्ट्री अगर जिसमें स्मोक्स ज़्यादा निकलता है तो उसको बेटा हम शहर से बाहर लगा लें या ऐसे जगह पे लगा दें जहाँ पे इन्वायरमेंट जो है कम उसको नुकसान हो। अब दूसरी बात, अगर हमने फैक्ट्री बनाई है सोशल, तो हम उसके आसपास अपने वर्कर्स के लिए पार्क बना दें या उसके आसपास सराउंडिंग्स में थोड़ा सा अगर हमारा पोल्यूशन हो रहा है तो हम पेड़ लगा लें। हमारा जो ड्रेन वाटर वेस्ट वाटर निकल रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है, अगर वो गंदा हो रहा है तो हम उसका एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं कि चलो हमने वो जो वाटर है उसमें सारी गंदगी और उसके जितने भी केमिकल्स हैं रिमूव करने के बाद हमने उसको ड्रेन आउट किया जिससे कि कम नुकसान हो सके कि जमीन को। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बेटा, ये हम लोगों की ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बिजनेस की। सो आई होप दिस विल बी द क्लियर टू यू। सो विल कम टू द रिस्क बेटा, ये सबसे अच्छा टॉपिक है रिस्क। जिसको रिस्क से इश्क है वो बेटा हमेशा जीतता है, तो रिस्क से आपको इश्क करना चाहिए। जितना रिस्क मोर गेम। This is the fund of the business. Okay. So come to the point. Risk means possibility of loss, not the loss. Risk क्या होता है बेटा? Possibility of loss. Loss हो सकता है पर ये जरूरी नहीं कि loss हो ही जाए आपको। ठीक है? So risk possibility of loss, it can be defined as the chance of loss due to the certain uncertain events in the future. रिस्क क्या होता है? जब हमें डिसाइड नहीं कर पाते, जब हमें पता नहीं होता है बेटा कि हमें फायदा होगा या नुकसान होगा और वो हम काम कर देते हैं। when in the future it's uncertain, कि हमें पता नहीं होता है आगे फ्यूचर में कि हमें से फायदा होगा लॉस होगा, फिर भी हम उसको इसका लिए चांस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्क। उसमें लॉस होने के चांसेस होते हैं, लॉस होने के चांसेस होते हैं। टू टाइप ऑफ रिस्क आते हैं, speculative risk and pure risk. Speculative risk means what it does mean, it's involve both the chance of gain and loss. फायदा भी हो सकता है स्पेक्युलेटिव में और लॉस भी हो सकता है। इफ द मार्केट कंडीशन इज फेवरेबल तो हमें फायदा हो जाएगा, अदरवाइज हमें नुकसान हो जाएगा। इट्स अराइज ड्यू टू द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन द टेस्ट एंड द हैबिट्स ऑफ द कस्टमर्स। अब जैसे बेटा इस टाइम गर्मी आ रही है, ठीक है, हमारा समर आ रहा है, अब इस टाइम बेटा कोल्ड ड्रिंक्स बिकेंगी। अब कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप दिसंबर में बेचोगे तो आपको लॉस होगा कि हमने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स दिसंबर में मंगा के रख ली, दिसंबर में बहुत चिल्ड होता है, बहुत कम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप लोग तो पीते ही नहीं होगे। सो बच्चों को भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं दी जाती है, तो फिर दिसंबर में अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे तो लॉस होगा। अब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एसी का शोरूम है आपका और आपने दिसंबर में खोला है तो एसी आपको दिसंबर में बिकेगा ही नहीं, उसकी ज्यादा जरूरत हमें जनवरी में, हमें समर्स में पड़ती है। तो ये बेटा थोड़ी सी चीजों डिमांड एंड सप्लाई होता है, किसी चीज की कभी डिमांड एंड सप्लाई को देखना पड़ता है, हैबिट और टेस्ट चेंज हो जाता है। फिर आगे है another one is pure risk, possibility to loss or even no loss। तो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है लॉस की और लॉस नहीं भी हो सकता। इन सच इवेंट टेक प्लेस इफ may result in loss or non-occurrence of such events, the result is absence of the loss instead of the gains। और हमें बेटा लॉस हो भी सकता है और लॉस नहीं भी हो सकता है, पर फायदा नहीं हो सकता।
ठीक है, प्योर रिस्क मतलब सो फायदा के हमें चांसेस कम है। इट अराइज ड्यू टू द फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, इनकी वजह से। नेचर ऑफ द ड्यू अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी क्या होती है कि आपका बिजनेस को आपको लग रहा है अनसर्टेन है यार, उसका मीन्स क्या है, आपको बिजनेस की नॉलेज कम है, लैक ऑफ द नॉलेज व्हाट इज गोइंग ऑन हैपन इन द फ्यूचर, कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम उसको अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या डिसाइड होना है, क्या होना है, तो हम लोग उसको अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, उसका हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बेटा हमें जो है रिस्क बढ़ जाता है हमारा। चेंज इन डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पैंडेमिक लाइक कोरोना वायरस एक्सेट्रा। अनदर वन, इट इज इनिशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क जो बेटा हर बिजनेस का एक इनिशियल पार्ट है। एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन रिस्क, हर बिजनेस का एक अपना रिस्क है। नो बिजनेस कैन अवॉइड द रिस्क, और कोई भी बिजनेस जो है रिस्क अवॉइड नहीं कर सकता। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड, रिस्क आप कम कर सकते हैं लेकिन आप उसको टाल नहीं सकते। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस, और जो रिस्क है बेटा वो डिपेंड करता है नेचर के बिजनेस पे और बिजनेस के साइज पे। तो जितना बड़ा बिजनेस होगा बेटा उतना बड़ा आपका रिस्क होगा। द बिजनेस डीलिंग विद द फैशनेबल आइटम विद द हाई डिग्री ऑफ रिस्क, जो फैशनेबल आइटम्स में डील करते हैं बेटा उनका हाई रिस्क होता है। अभी तो बेटा आपका चल रहा है ब्लू वाला नेल पेंट, अब कल माधुरी दीक्षित ने लगा लिया येलो वाला, तो ब्लू वाला नेल पेंट बेटा मार्केट से गायब। अब सब किसके पीछे भागेंगे, येलो वाले के पीछे। अब नया ट्रेंड आ गया कोई, अब ब्लू शर्ट पहन ली सलमान खान ने, तो सब आप ब्लू शर्ट पहनेंगे। अब येलो शर्ट सबने छोड़ दी। तो ये फैशनेबल ट्रेंड्स बेटा ये सब चेंज होते रहते हैं। जो फैशनेबल आइटम्स हैं ये सबसे ज्यादा हाई रिस्क के हैं, ठीक है। लार्ज स्केल ऑफ द बिजनेस हैज हाई रिस्क देन द स्मॉल, और जितना बड़ा बिजनेस होगा बेटा जी उतना ज्यादा हाई रिस्क होगा आपका। एंड अनदर वन इज प्रॉफिट इज रिवॉर्डेड ऑफ द बेयरिंग रिस्क, और जितना ज्यादा रिस्क लोग इस जितना ज्यादा मैं इश्क कह रहा हूँ रिस्क होगा उतना ज्यादा बेटा आपको प्रॉफिट होगा। जितने ठीक है, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना प्रॉफिट होगा, क्योंकि बिजनेसमैन को रिस्क से इश्क करना चाहिए। बिजनेसमैन को रिस्क से इश्क करना चाहिए। और आपने अभी एक पिक्चर आई थी 1972 स्कैम 1972 अमिताभ बच्चन के बेटे की, तो उसने बेटा जो हर्षद मेहता वाला स्कैंडल हुआ था, स्कैम हुआ था शेयर मार्केट में, उसमें ये डायलॉग बोला है, रिस्क से मुझे इश्क है, ठीक है, मोर रिस्क मोर गेम। नेक्स्ट, मेथड ऑफ डीलिंग ऑफ विथ रिस्क। अब इनको डील कैसे करते हैं। नॉट टू इंटर द हाई रिस्क ट्रांजेक्शन, जिसमें ज्यादा नुकसान है। अब बेटा जैसे बारिश हो रही है, अब मैं नमक लेके निकल जाऊं प्लेट में, सारा नमक बह जाएगा, तो व्हाई शुड आई टेक द रिस्क। शुगर लेके निकल जाऊं बारिश में, सारी शुगर बह जाएगी, व्हाई शुड आई टेक द रिस्क। सेम एज जो आपको पता है कि श्योर शॉर्ट हमें नुकसान होने वाला है इस ट्रांजेक्शन्स में या इसमें हाई रिस्क है, तो बेटा हम उसको अवॉइड करें, ठीक है, अभी उसको हम अवॉइड करें। टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स लाइक द फायर एंड फाइटिंग इक्विपमेंट्स लाइक दैट। और हमें पता है यार कि यहाँ पे आग लग सकती है या उसके 1% चांसेस भी हैं, तो हम लोग क्या करें बेटा कि हम उसके प्रिकॉशंस को जरूर यूज करें, ठीक है। अब उसके प्रिकॉशंस को हमें जरूर यूज करना है, उसके सारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स ये सब इंस्टॉल करके रखने हैं। अगर आपकी कपड़े की दुकान है, कोई सा भी चीज है, तो और उसको इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर करके रखना है जितने भी रिस्क हैं आपके। टेक द मेजर लाइक द प्रोविजन बैड डेब्ट्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, और उनके लिए आपको प्रोविजंस बना के रखने हैं। प्रोविजंस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। कॉजेज ऑफ द रिस्क, ये कौन बताएगा। नेचर कॉजेज कौन कौन से होते हैं, नेचुरल कॉजेज कौन कौन से होते हैं। सुनैना से नहीं पूछूंगा मैं। ओके वरदान, कैन यू टेल मी बेटा
वरदान यस सर। सुन सकता है बेटा मुझे? यस सर। जा बता दे बेटा आज मुझे नेचुरल रिस्क कॉजेस। सर natural calamities like flood, earthquake, tsunami, cyclone, हाँ वेरी। hailstorm. और अली सर ने तेरे कान पे चाटा लगा दिया तो वो रिस्क है नहीं, नेचुरल रिस्क? सर वो बड़ा रिस्क है इन सबसे, वो थोड़े बिग लेवल का रिस्क है। बिग लेवल का रिस्क। और कान किस दिए तुम्हारे तो वो कौन सा रिस्क है? सर वो समझ ही नहीं आएगा, अच्छा मम्मी तो नहीं वो रिस्क होके चला गया, समझ ही नहीं आया। अच्छा मम्मी तो नहीं बैठेंगे ना, सर कैसे एग्जांपल दे रहे हैं? हाँ जी। मम्मी तो नहीं है पास में? नहीं सर। हाँ कहीं मम्मी सोचे नहीं सर। सर कैसे एग्जांपल देते हैं कि कान पे चाटा लगा दी तो कौन सा रिस्क है ये? दैट विल बी द नेचुरल रिस्क है। चलो चलो चलो। यस। अच्छा ह्यूमन कॉजेज वाले रिस्क कौन बताएगा? जो ह्यूमन एक्टिविटी से आपको हाँ चलो इससे पूछते हैं। ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा अच्छा ये पूछते हैं किसी और को आज पूछते हैं। सुनैना से तो बहुत पूछ लिया, पलक से भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा। पलक नाराज हो जाएगी, वो भी तो अपनी बच्ची है, वो भी तो फीस देती है स्कूल को। यस पलक। अब पलक देखो नाराज हो गई, बोल ही नहीं रही है। Sir, it refers to like अगर strikes हो जाती हैं, humans may do strike, they may refer, so that can all be said. चल क्या नाम है तेरा? वरदान तू ही बता दे, तू भी बता दे। यस सर। हाँ ह्यूमन कॉजेज रिस्क। यस सर। ह्यूमन रिस्क सर, ग्लोबल वार्मिंग और मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, अगर कोई मतलब मैनेजमेंट ना की हो प्रॉपर बिजनेस में, घपला जैसे करना, और केयरलेसनेस, डिसऑनेस्टी, रॉन्ग रिकॉर्ड्स। रॉन्ग रिकॉर्ड्स। बस यही। यस राइट आंसर। आपने जैसे वरदान ने बताया घपला कर दिया। डू यू नो द घपला? ओके सो सर जो हर्षद मेहता ने किया। another one is the economic causes. So it includes the uncertainties related to demand for the production, competition, price, change in the technology, arising in the interest rate, higher taxes. और इनकी वजह से अगर आपका रिस्क बढ़ रहा है, सो इकोनॉमिक कॉजेस कौन कौन से उसमें इंक्लूड होते हैं? अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द डिमांड्स। अब जैसे आजकल जो है बेटा डिमांड्स, बहुत सारी चीजों की डिमांड कम हो गई है, ठीक है। अब जैसे स्कूल बैग्स की डिमांड बिल्कुल कम है, क्योंकि स्कूल ही नहीं खुल रहा तो लोग स्कूल बैग्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स बताइए, लोग अब कोल्ड ड्रिंक्स भी कम पी रहे हैं, सो कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड कम हो गई है। फिर कंपटीशन की वजह से भी बेटा कि अगर कोई सामान आपको सस्ता मिलने लगा, आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, आपकी मार्केट रेट ज़्यादा है, प्राइसिंग ज़्यादा है, उससे सस्ता सामान मिलने लगा तो लोग उस सामान के पीछे भागने लगते हैं। या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, आप तो फिर जैसे लैपटॉप्स हैं, इनके कंप्यूटर्स में वो आते रहते हैं, विंडोज मतलब अपग्रेडेशन आते रहते हैं, मोबाइल्स में अपग्रेडेशन आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो फिर आपको ये सब जो रिस्क आपको बेटा बियर करने पड़ते हैं बिजनेस को। अदर काजेस रिस्क ये बताइए सुनैना। पॉलिटिशियन डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फीचर्स, फेल्योर्स। यस सुनैना। सर ये रिस्क वो होता है जैसे कोई किसी गवर्नमेंट ने कोई नया वो लॉन्च, क्या बोलता है, नई गवर्नमेंट आ गई, नई गवर्नमेंट आ गई, सर कोई नया लॉ एस्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। तो उसको उसमें भी बिजनेस को लॉस हो सकता है। और मैकेनिकल फॉल्ट, मतलब कोई मशीन में कोई खराबी आ गई, उससे भी बिजनेस में कुछ लॉस हो सकता है। और अदर चांसेस, चेंज इन द एक्सचेंज रेट,
अब जैसे इंडिया का सर कंपैरिजन, जैसे कोई रेट चेंज हो गया, जैसे एक्सचेंज रेट, जैसे इंडिया में जो अगर आप डॉलर से चेंज कराएं तो हमें 70 रुपीज कुछ मिलते हैं, 70 कितने मिलते हैं, 80 रुपीज मिलते हैं। तो अब वो रेट, एक्सचेंज रेट भी चेंज हो गया बेटा, तो उससे भी जो है हमारे लॉसेस हो जाते हैं अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। सो दिस इज द मेन कॉजेज 5 आपके, ये नेचुरल कॉजेज हैं, ह्यूमन कॉजेज है, कॉजेज रिस्क है, अदर कॉजेज। सो ये सारी चीजें हैं। फिर हम आते हैं स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस पे। तो बेसिक फैक्टर्स क्या है बिजनेस को स्टार्ट करने के, ये आप सबको पता है, बस मुझे रिवाइज कराने हैं। सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द बिजनेस, हमें लाइन ऑफ द बिजनेस सिलेक्शन करनी है। नेचर एंड द टाइप ऑफ बिजनेस दैट एंटरप्रेन्योर शुड बी चूज टू स्टार्ट द। सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन ऑफ द बिजनेस को चेक करना है कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, कौन से नेचर का बिजनेस करना है, और वो हमें सबसे पहले चूज करना है। ठीक है, या हमें ज्वेलरी की तरफ जाना है या टेक्सटाइल्स की तरफ जाना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या जिसमें आपको अच्छे से नॉलेज हो, हम वो बिजनेस को चूज करने को प्रेफर करते हैं। The size of the firm, the promoter has to decide the size of the firm। जो promoters होते हैं यानी जो मालिक होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम कितना बड़ा बिजनेस खोलेंगे, विच में भी आइदर स्मॉल स्केल और मीडियम और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल बिजनेस होगा, मीडियम स्केल बिजनेस होगा या लार्ज स्केल बिजनेस होगा, ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द फ्यूचर डिमांड, और फ्यूचर को की डिमांड्स को देखते हुए। फिर चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ द ओनरशिप, ओनरशिप की हमारे पास चॉइसेस क्या होंगे। द प्रोमोटर मस्ट डिसाइड वेदर ही वांट टू स्टार्ट द सोलो पार्टनरशिप कंसर्न और पार्टनरशिप फॉर्म द प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब ओनर चॉइस करेगा, प्रोमोटर्स चॉइस करेंगे कि भाई उन्हें अकेले बिजनेस शुरू करना है तो सोलो पार्टनरशिप कंसर्न होंगी, किसी के साथ शुरू करना है तो पार्टनरशिप बना लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं, प्राइवेट कंपनी बना लेते हैं, पब्लिक कंपनी बना में से स्टार्ट करना है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के बिजनेस करना है। लोकेशन कहाँ पे बिजनेस करेंगे, इट मस्ट डिसाइडेड द बेसिक ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, स्कोप ऑफ द एक्सपेंशन। और फिर उसके बाद क्या होता है, लोकेशन ऑफ द बिजनेस डिसाइड करते हैं कि साहब कि प्रॉपर हमारे पास जमीन कहाँ मिल जाएगी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ मिलेगी, वाटर एक्सेसिबिलिटी होगी नहीं होगी, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, और अगर हम बिजनेस बढ़ाएंगे वहाँ पे तो हमें उसके लिए और जमीन अमीन मिल जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है फिनांसिंग एंड द प्रोपोर्शन, यानी कैपिटल, प्रोमोटर हैज टू डिसाइडेड अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल एंड रिसोर्सेज, कि वो उसको पैसा कहाँ से मिल सकता है और वो कितना पैसा लगाना चाहिए उसको। It has to be considered the resources like share, debenture, bank loan, cost of the capital। तो ये 4 तरीके हैं बेटा बिजनेस। यस अर्सलिन, यस what happened बेटा? Yes बेटा, ask me the doubt। Sir, can you please send this PDF on Google Classroom so that we can write down on our notebooks? Okay, today I'll upload this one, okay? By the evening I will। Okay. Next one, physical facilities, it means the resources used to convert the raw material into the finished goods। दूसरे resources क्या बेटा, convert the raw material into finished goods, इन सब के resources जो यूज होंगे। Plant layout, proper arrangement of machine equipment and the worker is the result to reduce the wastage। अब जैसे बेटा प्लांट है हमारा, कोई भी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें छोटे छोटे काम हो रहे होते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम टेक्सटाइल्स को ले लें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉटन होगी हमारे पास उससे हमारा सबसे पहले थ्रेड बनेगा, तो कॉटन के पास वाला हमारा जो कॉटन से थ्रेड बनेगा वो थ्रेड से फिर कपड़ा बनता है। तो ये सब बेटा एक लाइन में होने चाहिए। जैसे अगर हम कार का ले लें तो हम सबसे पहले बॉडी बनती है, बॉडी के बाद क्या होता है, इंजन फिट होता है, तो बॉडी वाला सेक्शन, उसके बाद यहाँ पे इंजन फिट होता है वाला सेक्शन, उसके बाद बेटा आपका एसेसरीज वाला, उसके बाद
उसकी पेंटिंग वर्कशॉप होनी चाहिए, लास्ट में टायर वाला आएगा। तो ये सब एक लाइन में होंगे तो टाइम भी बचेगा, वेस्टेज भी बचेगा बेटा। तो ये सारी चीजें एक लाइन में होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट एंड द कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स, ये मैन पावर, ये तो मुझे कोई बच्चा ही सुना नहीं बताएगी मुझे जल्दी से। यस सुनैना, कैन यू एक्सप्लेन दिस वन? Sir, wait 2 minutes. Yeah, take your time. Okay, Bhutan, can you go for that? So competent and committed workforce refers to that we should have a proper manpower, or we should have the required numbers of workers in our factory, so or our industry, so that we can produce enough goods and compete in the market. And we should also have two types of labor, skilled and unskilled. And it's- Unskilled for all the work, like we to lift something or any other thing, and skilled to operate machines. Okay, very good. A proper manpower planning is necessary to calculate the number of the employees, skilled and unskilled, to be appointed in the various position of their qualities. बेटा जो the competent and the committed workforce means कि आपको बेटा जितने भी आपको फैक्ट्री में लगाने हैं, जितने एम्प्लॉयड लगाने हैं, उसके लिए आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि कितने हमें स्किलफुल लगाने हैं, कितने अनस्किल्ड लगाने हैं, और किस पोजीशन पे लगाने हैं, और उनसे हम क्या क्या काम ले सकते हैं। एंड अनदर वन इज टैक्स प्लानिंग, और हमें ऐसे सोचना चाहिए जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स टू मिनिमाइज द टैक्स थ्रू द बेटर प्लानिंग, और हम अपना टैक्स कम कर सकते हैं बेटर प्लानिंग से। अबाउट द लोकेशन, जैसे हम टैक्स फ्री जोन में लगा दें, लोकेशन हमारी टैक्स फ्री जोन हो, तो क्या होगा बेटा, हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साइज ऑफ द बिजनेस, ये छोटा साइज होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। द प्लानिंग डज नॉट द टैक्स प्लानिंग does not mean non-payment of the tax. Launching the enterprises. Oh, this will go to the another one where Shali will tell us. Launching the enterprises, beta. So 2 minutes. Yeah, takes your own time. So it means that the owner of the business should firstly think about the necessary resources which he needs in his business, and then he thinks about the machinery work or any which he needs for his business, and then he should think about how to promote his product in the market so that more and more people can buy that. So I hope this topic has been clear to you. किसी को बेटा doubt है? Anyone have the doubt बेटा? Just raise your hand if you have any doubt. और बेटा आज मैं सारी चीजें अपलोड कर दूंगा, सो आपको पीपीटीज आप देख लीजिएगा, और किसी को डाउट हो तो बेटा ये वीडियो जो है मैं आपका रोज अपलोड करता हूँ फेसबुक पेज पे, तो आप उसको देख के बेटा आपके जो भी थ्योरीज हैं वो चेक कर लीजिएगा बेटा, ठीक है? ओके बेटा, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू बेटा जी।